we record a return of those sales of goods which we had sold on credit. Okay, so sales return book is a book where we record all the credit sales of return. Na? Yeah, record return of those sales of goods which we had sold on credit. Okay, this book is also known as return inward book. Return inward book. Okay, clear है कि sales return book is also known as return inward book. And what kind of return we record under this? So whatever the goods we have sold on credit only, right, students? So when we read, we get sales return, so we prepare credit note. Credit note stating that what amount of goods returned by customer and reason for it. Also it is used as an acknowledgement to customer that his or her account has been credited, ठीक है, by this amount. यानी जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है, जनरली देखो स्टूडेंट्स, yesterday I have taught you people, when we sell goods to customer, so we do debit to the customer. Okay, but when the same customer will return the goods due to some reason, so we need to do credit him. So to make credit him, we have to prepare a credit note and send it to the customer by stating that his account has been credited by this amount. ठीक है, तो ये बनाया जाता है. और क्रेडिट नोट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट. दो कॉपी बनाई जाती है, एक कस्टमर को भेजी जाती है, एक अपने पास रेफरेंस के लिए हम लोग रखते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे इसका, देखते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो हियर okay,
So this is column, you know, for date, and this column will be for particulars. This column will be for credit note number. This column will be for LF and details. This is board page. एक minute students, I am changing the board because this board is not perfect to make the diagram. Okay. Okay. Now this board is visible. Yes, sir. White is here. Okay. Okay. This column will be for date, and this column will be for particulars. This column will be for credit note number. This column will be for LF, and this column will be for detail. And after detail, you know, the sales return price would be, and then output CGST, output SGST, output IGST, and total. Okay. So here you will be writing date, particulars, or name of customer, name of customer. You can write account to be credited or credit note number. I am writing here. So credit note number. Okay. Here we'll be writing sales return book. Okay. And this column will be for LF, and this column will be for detail, and this column will be for sales return price, and this is output CGST. Okay, and this will be for output as GST, right? And this is output IGST. Okay, and this is total amount. Okay, students. So this is the format of sales return book. So you see the illustration number 6. Illustration number 6. Page number 12.16. Did you get the illustration, everybody? Yes, sir. Okay. So here it is saying prepare sales return book in the books of Ramlal and Company, Hisar, Haryana, from the following transactions, assuming that CGST is 6% and SGST is 6%. And 2018, okay, April 6. April 6. It is saying goods returned by Ganga Prasad and Company. So write the name of Ganga Prasad and Company, और हरियाणा में ही है, करनाल, सेम स्टेट में है. ठीक है. सो क्या क्या आपने रिटर्न किया है? 1 टेबल फैन. सो 1 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 6000. ठीक है, 6000 का एक टेबल फैन है स्टूडेंट, इतना कॉस्टली. और इनका डेबिट क्रेडिट नोट नंबर क्या है लिखा है? तो स्टूडेंट यू विल सी क्रेडिट नोट नंबर इज नॉट written, so leave it like that.
and you will be writing 6,000 because one table fan has said less trade discount. How much? 15%. So 900 will be trade discount. So amount will come 5,100, right? After that, you will add CGST and SGST. Add CGST and SGST at 6% and 6%, right? तो 6% कितना होगा आप कैलकुलेट करो तो 306 एंड 306 सेम अमाउंट आ जाएगा. टोटल कर लो आप तो टोटल आ जाएगा 5712 अगर आप टोटल करते हो तो सेल प्राइस में यू विल बी राइटिंग 5100 and here you will be writing 306 and लास्ट में अगेन सेम अमाउंट लिखेंगे आप 51712. सो दिस इज क्लियर. सेल्स रिटर्न बुक देखो सेम है ना बेटा आप लोग कि सिर्फ नेम ऑफ कस्टमर जाना है और कुछ नहीं. अब देखो 12 को क्या कह रहा है कि श्याम ऑयल मिल्स, ठीक है, क्या किया रिटर्न? यमुनानगर हरियाणा में ही है. रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, ओके, वैल्यूड 40,000. तो 12. So first we will writing Shyam Oil Mills, the name Shyam Oil Mills, ठीक है, और एड्रेस है यमुनानगर, ठीक है. हरियाणा, सॉरी, सो क्या रिटर्न किया है? डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया है. डायरेक्टली डिटेल नहीं दिया है तो अमाउंट्स लिख लो आप. कितने का है? 40,000. सो 40,000 क्योंकि डिफेक्ट होने की वजह से गुड्स रिटर्न किया तो जीएसटी तो चार्ज करेंगे ही. एड CGST एंड SGST, ठीक है. सेम अमाउंट है, सॉरी परसेंटेज 6%. सो कितना हो जाएगा? 2,400, राइट. टोटल 44,800, सॉरी 44,800. अब यहाँ में कितना होगा? 40,000 होगा सेल्स रिटर्न में और 2,400 एंड 2,400, ठीक है. यहाँ हो जाएगा 44,800. डन. समझ आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? यस सर. अब एक और भी इसमें एक लोग हैं उनका भी देख लेते हैं. एक और ट्रांजेक्शन बच गया ना. सो ठीक, ये है. तो इसमें डेट आपका जो है, ये डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स और क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है. LF डिटेल, सेल्स रिटर्न, CGST, SGST
IGST, ठीक है, और टोटल, और यहाँ पर ये पूरा तुम्हारा आउटपुट है, मतलब शॉर्ट में हमने ऊपर लिख दिया आउटपुट। ओके, सो कंटिन्यू ऑन 2018 अप्रैल और 18, ठीक है, तो किसने अलाउंस देना है? संजय एंड कंपनी, संजय एंड कंपनी, और कहाँ के? हरियाणा में ही है, फरीदाबाद। ओके, सो कितने का अलावेंस है इनका? 2500 का है अलावेंस, मिस्टेक की वजह से। तो आप 2500 रुपीज़ लिखेंगे और फिर इसमें आप ऐड करेंगे GST, C GST एंड S GST, ठीक है। सो कितना आ जाना है? 150, आप कैलकुलेट करो, 150, 6% विल बी, so total 2800, okay, and here you will be writing 2500 150 150 and here dash and again 2800। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? टोटल करते हैं। तो टोटल कितने करते हैं? ये इस कॉलम का करते हैं सर, ठीक है। तो पिछला जो पेज था और इस पेज को दोनों मिला के टोटल करना है। सो आप करेंगे तो ये इसका टोटल आ जाएगा 47,600 और इसका टोटल करेंगे तो आएगा 2856, ठीक है। और इसका भी सेम आएगा, जितना ये आना है उतना ये भी होगा, यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा 53,312। आप टोटल करके चेक कर लो, ये वाला पेज और ये वाला पेज, तो ये है ना, ये सब ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। सो समझ में आ गया सभी को सेल्स रिटर्न बुक? यस सर। यस सर। सो आई थिंक नाउ यू कैन डू ना, अब कर सकते हो इसको। अब आते हैं हम लोग, हाँ, अब वापस आते हैं सेल्स सॉरी जर्नल प्रॉपर पे। ओके, तो सी दी जर्नल प्रॉपर। ओके, बोर्ड दिख रहा है सभी को? स्टूडेंट यूजफुल है? ओके, ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है। नाउ जर्नल प्रॉपर, so journal, sorry, journal proper is just like journal entry but in this book we do not pass entries for all the transaction.
और ऑल दी ट्रांजेक्शन विच डू नॉट पास। सो क्या करते हैं हम लोग, वी डू जर्नल एंट्री only those transactions which have not been sorry which have not been recorded in any subsidiary book। तो किसी भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ओके, सब्सिडरी बुक का मतलब जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक and return book। Return book means what? Includes purchase return and sales return ना, दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो न तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, न ही परचेज बुक में, न तो सेल्स बुक में, न तो किसी भी रिटर्न बुक में हुआ है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होना तो है। ऐसा तो है नहीं कि हम स्किप कर देंगे। So where it should be recorded? So this transaction should be recorded into the journal proper। Journal proper means we do the entry for the proper transaction, not for all। किसी particular transaction को हम record करते हैं। Example, bought a machine on credit from Ramlal rupees 20,000। Now think, तुमने यहाँ क्या खरीदा? मशीन। मशीन इज नॉट अ गुड्स। मशीन क्या है? ये एक एसेट्स है ना। और आपने उधार खरीदा, तो कैश बुक में भी नहीं। देखो कैश बुक में हम क्या करते हैं, अगर ये मशीन परचेज की होते कैश, तब तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता, बट वी हैव बॉट इट ऑन क्रेडिट, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर। अब परचेज बुक, सो व्हाट वी रिकॉर्ड इन परचेज बुक, यू नो, वी रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो क्रेडिट परचेज तो है, लेकिन ये गुड्स का परचेज नहीं है। क्रेडिट किसका परचेज है? एसेट्स का परचेज है ना। सो इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू द परचेज बुक, नीदर इन सेल्स बुक नॉर इन रिटर्न बुक, कहीं नहीं होना है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हम लोग जर्नल एंट्री करके करेंगे इन जर्नल प्रॉपर। तो क्या करेंगे, जर्नल प्रॉपर में हम लोग एंट्री करेंगे मशीन आ रहा है हमारे पास, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, किससे हमने उधार खरीदा? रामलाल इज द पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। सो यहाँ पे रामलाल क्या है? गिवर है, तो रामलाल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स ये वाली एंट्री जो अभी मैंने बताया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this means you all are getting this, कि जो अभी बताया जर्नल प्रॉपर। और भी एक आध एग्जांपल कोई आप लोगों में से बता सकता है कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करेंगे जो किसी बुक में नहीं होगा? कोई भी बताओ आप लोग सोचकर दिमाग से, कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि ट्रांजैक्शन तो है बट उसका रिकॉर्ड किसी बुक में नहीं होना है? बता सकते हो आप लोग? बताइए।
कोई भी भाई, गलत सही कुछ भी बताओ आप लोग। कोई आइडिया है? से यस और नो। अगर आइडिया है तो बताओ, नहीं है तो मत बताओ। बता दो कि सर आई डोंट हैव आइडिया। ओके, नो Yes, sir. आइडिया। Sir, हाँ, check received but not deposited into bank. वेरी गुड बेटा। चेक डिपॉजिटेड, सॉरी चेक रिसिप्ट, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, है ना, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यानी आपको चेक तो मिला, किससे मिला? चेक रिसिव्ड। मान लो कि चेक दो तरीके से मिलता है, या इधर यू कैन सेल द गुड्स एंड रिसीव द चेक, और इन पेमेंट एनी कस्टमर कैन मेक यू पेमेंट। सो चेक रिसिव्ड फ्रॉम मिस्टर हीरालाल। ठीक, तो चेक आ रहा है हमारे पास, जमा नहीं है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू हीरालाल। ओके, सो जो भी अमाउंट होगा वो हम लिख देंगे। एक और बता देते हैं अपने से, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन रुपीज 500। 500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और किस पे चार्ज किया? मशीन पे। तो मशीन क्या है? रियल अकाउंट है। ठीक है, लेकिन ये तो न तो पैसा आ रहा है न तो जा रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो सिर्फ बुक में चार्ज करके दिखाया जाता है। इसके लिए हम किसी को पेमेंट नहीं करते हैं। सो नॉन कैश एक्सपेंसेस है ये, तो कैश बुक में होगा नहीं। और ट्रांजैक्शन देखने से समझ में आ रहा है इसमें ना तो परचेज हुआ है, ना तो सेल हुआ है, ना तो रिटर्न हुआ है, तो किसी भी बुक में नहीं होना है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो यू नो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज ऑलवेज बी डेबिट। So we should debit depreciation, account debit, and to machine is real account, तो मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो मशीन एक तरीके से जा रहा है हमारे पास से 500, क्योंकि जितने रुपए से वैल्यू कम हो गई उतने रुपए से मशीन कम हो गया, चला गया। सो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन यहाँ कम हो रहा है, जा रहा है। सो 500 रुपीज़ क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेज है इसलिए इसको डेबिट कर दिया। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? जनरल प्रॉपर आगे क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, जिसमें जनरल प्रॉपर करना होगा। जैसे बैड डेब्ट्स, किसी कस्टमर के हमारा पैसा डूब गया, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रुपीज 2000 was due from रोहित, ठीक है, became insolvent, and nothing could be realized from his estate। मतलब उसके संपत्ति से, उसके जायदाद से कुछ भी पैसा नहीं मिला, जबकि 2000 रुपया में लेना था, तो पूरा पैसा डूब गया, तो बैड डेब्ट्स हो गया। सो बैड डेब्ट्स इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड एक्सपेंसेज। सो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ये एक लॉस है हमारा। और किसके यहाँ लॉस हो रहा है? रोहित के यहाँ। तो रोहित एक तरीके से लॉस का गिवर हो गया हमारे लिए। सो रोहित, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर।
तो ये मान लेना कि रोहित पैसा नहीं दे रहा है तो उसका अकाउंट क्लोज करना है। तो रोहित का जब तक क्लोज नहीं करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे, तब तक अकाउंट बंद नहीं होगा। तो इसलिए रोहित को क्रेडिट करना है। तो बात समझ में आ गई। पैसा अगर डूब गया तो भी हम कैसे करेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का हो गया, प्रीपेड का हो गया। अब जैसे मैंने स्पेशल एंट्रीज आप लोगों को बताए हैं करके पहले का, जैसे अब लिखा है रुपीज 2000 is due for wages। तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस कहेंगे, है ना। क्योंकि ये पैसा हमको अभी पेमेंट करना है, किया नहीं है, बकाया है हमारे यहाँ। तो वेजेस तो एक्सपेंसेज है, तो वेजेस को तो डेबिट कर देंगे जनरल प्रॉपर में, लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। हाउ मच, 2000। अब इसी तरह अगर कह दिया कि इंश्योरेंस वाज पेड इन एडवांस, यानी इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। सो प्रीपेड इंश्योरेंस विल बी डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, यानी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट इज द रिसीवर, तो जिसको हमने पेमेंट किया है वो रिसीवर है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। एंड टू इंश्योरेंस, क्योंकि ऑलरेडी पेड है ना, अभी पेमेंट करते हैं तो टू कैश लिखते हैं, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी प्रीमियम का पैसा पहले से हमने ज़्यादा दे रखा है, जो भी अमाउंट होगा आप वो दिखा दोगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्लियर, से यस और नो, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so now Yes, sir. 5 minutes I wish to discuss about the syllabus, what I have sent to you all people, and regarding revision and all, and what are your preparation and how much you have prepared the notes, everything. So just I am reading the syllabus in class 11 yesterday, yes। चैप्टर सीक्वेंस नंबर मैंने पुटअप किया है। यू विल सी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इज देयर, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आर सेम। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? यू कैन नोट सिलेबस, मैं आप लोगों को सिलेबस नोट करा दे रहा हूँ फिर से, जितने लोग नहीं, व्हाट्सएप पे तो मैंने सेंड किया ही है, आप यहाँ भी देख लो, ओके। डिस्कशन कर लेते हैं, आप एक दूसरे को शेयर कर लेंगे जो लोग नहीं ध्यान दिए हैं। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर फ्रॉम 16 हमारा स्कूल तो ऑफलाइन हो जाएगा, तो हम लोग ये टेस्ट जो है वो ऑनलाइन देंगे कि ऑफलाइन? टेस्ट हो सकता है बेटा ऑनलाइन हो ये वाला, ओके सर। तो सिलेबस पर मंथली टेस्ट ऑफलाइन होगा तो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, अभी तक ऑनलाइन का इन्फॉर्मेशन है। तो चैप्टर बेटा जो मैंने लिखा है 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, isn't it? इसका मतलब इसमें क्या क्या है तुम्हारा, मीनिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ओके। सेकेंड चैप्टर आई हैव रिटेन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ओके। सो ये चैप्टर दिया हुआ है आप लोगों में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बेसिक अकाउंटिंग
terms. Okay, and third is अकाउंटिंग थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग मैंने लिखा है, उसमें मैंने कुछ नाम लिखा है। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, तो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में मैंने लिखा हुआ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट, या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, एक ही बात है। फिर उसके बाद प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देखो एक चैप्टर होगा आपके बुक में, चौथा, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, डन। फिर उसके बाद एक होगा फिफ्थ में मैंने लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने नहीं दिया है, ठीक है, आप याद कर लोगे भले ही। अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टैंडर्ड को मैंने स्किप कर दिया है। सिक्स में आप देखो फिर जो है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री यानी डबल एंट्री सिस्टम जो है, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, ये सब नहीं देकर सीधे मैंने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तुम्हारा, जैसे बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम जो है इसी में आ जाता है, डबल एंट्री सिस्टम, सॉरी, डबल एंट्री सिस्टम में जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यानी गोल्डन रूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो बस इतना ही अभी पढ़ना है। जनरल एंट्री तुम्हें पता ही है जनरल एंट्री कैसे होता है, जर्नल एंट्री भी पढ़ लेना आप लोग। वैसे डेबिट क्रेडिट रूल आप पढ़ोगे तो वो उसमें आ ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सिलेबस स्टूडेंट्स? यस सर। तो आप लोग नोट कर लो, अपने फ्रेंड सर्किल में एक दूसरे को शेयर कर दोगे, ठीक है, कि कैसे क्या होना है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अब हम रिवीजन भी कराएंगे और क्लास टेस्ट भी लेंगे उसके पहले, ठीक है। तो कल से हम रिवीजन स्टार्ट करें। जनरल प्रॉपर समझ में आ गया? कल हल्का फुल्का मैं बता दूंगा आप लोगों को कि होता क्या है। जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है आप लोगों को जनरल सब्सिडरी बुक का, तो आप ध्यान रखो उसमें कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक और उसके बाद जो बचा हुआ एंट्री होता है ट्रांजैक्शन, उसको जनरल प्रॉपर में करते हैं, तब जाकर पूरी एक क्वेश्चन कंप्लीट होती है। बट अगर स्पेशली आपसे बोला जाता है कि प्रिपेयर परचेस बुक या सेल्स बुक, सो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू रिस्ट्रिक्टेड ओनली दैट टॉपिक, ओके। सो you have to do your best, and from tomorrow I will start revision. So ask your friend to join in a good number so that they cannot miss, they should not miss the revision class. It will help you for the monthly test and for the weekly test conducted by us also. So देखो स्टूडेंट, मेरा जो अपना टेस्ट होगा, मेरे टेस्ट में जो बच्चा प्रेजेंट होता है, अच्छे से करता है, मैं उसको बहुत फेवर करता हूँ, बहुत सपोर्ट करता हूँ पढ़ाई में। इवन रिजल्ट में भी आप लोग का रिफ्लेक्ट होगा ये मार्क्स। और जो मंथली टेस्ट हो रहा है, स्कूल कंडक्ट करा रहा है, दैट इज़ मैंडेटरी फॉर द रिजल्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिजल्ट में वो डायरेक्टली ऐड होगा। और जो हम लोग टेस्ट लेते हैं उसमें जो बच्चा प्रेजेंट रहता है, जो देगा हमारी तरफ से, जो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स जाएगा वो मैं अच्छा दूंगा, जो मेरे टेस्ट में अच्छे से करेगा। और जो लापरवाही दिखाएगा तो फिर वो परेशान रहेगा, ठीक है।
तो इसलिए हर एक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 10th में बहुत लोगों का मार्क्स कम हुआ होगा, तो हो सकता है क्लास 9th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना रहा हो उनका, 10th में भी नहीं ध्यान दिए होंगे असाइनमेंट प्रोजेक्ट पे। So now the CBSE wanting that की full involvement and comprehensive evaluation of the students. So student must appear and attend all the activities what the school is assigning, and initiative you should take. Okay, students. So okay, bye bye. Have a nice day.